गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास। मेरा नाम रोहित है एंड आई विल बी योर ट्रेनर फॉर टुडेज क्लास. तो बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, लेट जस्ट हैव अ स्मॉल introduction about yourself. Can you all please introduce yourself in the chat section, your name, your city, and your current profession? इन द मीन टाइम और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक हम छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन पार्ट रख लेते हैं एंड देन विल बी स्टार्टिंग दिस कंप्लीट डेमो सेशन. Manjit Kumar from Mount Abu. All right, Mount Abu is a good place. Mohammad Mohsin, Delhi, Digital Marketing Executive. Okay, Anushka Bharti from Jaipur. Dhananjay Kumar, retired from Indian Army, Delhi. Oh, that's good. Kumari Avantika from Hazaribagh, Jharkhand. Mohit Sharma from Bilaspur. All I need a job for it. Good evening, Subha. Manjit from Dehradun. Rashmi from Noida. Nikita Kadam from Mumbai. Vikas Sharma from Patna, Bihar. All right. Subha is from West Bengal. All right, guys. So just let me know कि Malvika from Noida. That is good. So let me know what is your purpose to learn the digital marketing. How do you come to know about the digital marketing, and why do you want to pursue your career in the digital marketing? Okay, Aishwarya from Healthcare Marketing Executive, Gurgaon. Rajiv Kumar Jha from Sitamarhi, Bihar. Subha is 12th pass science stream student. That's good. Shweta Hindekar from Mumbai. Naresh Bhardwaj, Delhi, Logistic Manager, Petroleum Products. That's good. Mohammad Mohsin is wanted to become a performance marketer. All right. What about other guys? Because I want to learn a lot in this field for a long-term run. Okay, Shweta. Om Prakash Patel from Bhopal, MP. All right, guys. So I think all of you might heard about the digital marketing, and maybe some of you are also working into this field, and maybe some of you also running your own business too. तो कहीं ना कहीं yes, the class is being started सुबह. तो कहीं ना कहीं you might be hearing about the digital marketing from here and there in your life. All right, and maybe and the last time, maybe in last few days, you might have shopping, you might have done the online shopping, और आपने social media use किया होगा आज ही. तो कहीं ना कहीं जब भी आप इंटरनेट पर जाते हो, इंटरनेट से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो इट मीन्स यू आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग. यू आर बेसिकली गोइंग थ्रू द पार्ट ऑफ द और जर्नी ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग. All right. So Kumari Avantika want to learn digital marketing for enhancing my skill to pursue my career in the same. All right, Kumari. So let me just introduce myself first, and to let you know that why I am the right person to teach you about the digital marketing. Yes, SEM SEO is the part of the digital marketing. So guys, my name is Rohit Gupta. I am having more than 5+ years of experience in the digital marketing. I have an expertise in the Google Ads. Although digital marketing के बहुत सारे modules होते हैं, इसमें बहुत सारे subjects होते हैं, तो उसमें मेरी जो main core expertise है, that is into the Google Ads, जहाँ पर मैंने 5 years से ज़्यादा बजट हैंडल किया हुआ है. अभी तक 50 से ज़्यादा businesses के साथ मैं काम कर चुका हूँ, 1000 से ज़्यादा students को मैं पढ़ा चुका हूँ. Most of my students are working in the MNCs like Google, Accenture, HCL, और कुछ लोगों ने अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट करी है, बाकी कुछ बिजनेस ओनर्स भी हैं, तो दे आर नाउ हैंडलिंग देयर बिजनेस बाय ओन.
ऑलराइट, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की सिंपल अगर जॉब के टर्म्स में हम बात करते हैं और सिंपल एक स्कोप के टर्म में हम बात करते हैं आज की लाइफ में, तो डिजिटल मार्केटिंग में एवरी ईयर अगर आप देखोगे तो 4 लाख न्यू जॉब रोल्स असाइन हो रहे हैं, 4 लाख न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। एंड अगेन इट इज वन ऑफ द हाइएस्ट इन द फील्ड, इन द स्किल फील्ड। श्योर। ऑलराइट, तो ये स्किल की पार्ट में एक सबसे बड़ा पार्ट है, जितनी भी आजकल स्किल्स की डिमांड में एक सबसे बड़ा पार्ट है जहां पर डिजिटल मार्केटिंग में हर साल इतनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। ऑलराइट, तो द बेस्ट थिंग इज कि आप इस फील्ड को चूज करते हो तो इस फील्ड के लिए आपको अपने जो करंट प्रोफाइल है, अभी जो अपना करंट आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है या जो आप करेंटली कर रहे हो उसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप उसके साथ साथ इस स्किल को सीख सकते हो। यस, डिजिटल मार्केटिंग इज कम्प्लीटली प्रैक्टिकल। ऑलराइट, सो लेट्स कम, if you can see, everyone is basically talking about the digital marketing. You can see it in the newspaper headlines too, and you can also see some of the big newspaper, they are basically showing that what is the current scope of the digital marketing in the Indian market too। ठीक है, जहाँ पे डिमांड जो है वो सप्लाई से एक्सीड हो गया, मतलब मार्केट में डिमांड ज्यादा है पर जो एक्सपीरियंस्ड है, जो प्रोफेशनल्स हैं, दे आर वेरी लेस इन द मार्केट। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि डिजिटल मार्केटिंग में जो आपका पे आउट है वो पे आउट स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू द अदर स्किल्स। अगर आपके पास स्किल है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर बहुत एक अच्छा पे आउट ले सकते हो। देखो, और वो भी क्या है उसका मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। Digital marketing is mainly related to promoting the business and to bring out the sales or business for the means bring out the profit for the businesses। तो आप कहीं ना कहीं किसी बिजनेस को हेल्प कर रहे हो उसके गोल्स को अचीव करने में विद द हेल्प ऑफ द मार्केटिंग। एंड मार्केटिंग का सिंपल गोल है वेयर यू वांट टू रीच और यू हैव टू मेक कंपनीज मैसेज रीच टू द राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विथ अ राइट प्लेटफॉर्म। तो आज जो राइट प्लेटफॉर्म है दैट इज द इंटरनेट। And most of the businesses that was not there on the internet, still they are forced to come online। ऑलराइट, वो ऑनलाइन आने के लिए फोर्स है क्योंकि वो नहीं कर रहे तो उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं दे आर डूइंग द सेम थिंग एंड दे आर ईटिंग देयर मार्केट। तो कहीं ना कहीं सारे बिजनेस को आज ऑनलाइन आना बहुत जरूरी हो गया है, और ऑनलाइन आने के लिए कहीं ना कहीं दे नीड अ एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स हु कैन टेक देयर बिजनेस ऑनलाइन, हु कैन जनरेट अ गुड प्रॉफिट फॉर देयर बिजनेस। ऑलराइट, अगर हम आज भी देखते हैं इंडिया में स्कोप डिजिटल मार्केटिंग का, तो बाकी जितने भी अपने इंडिया में मार्केटिंग चैनल्स हैं, यू कैन सी बेस्ड ऑन अदर मार्केटिंग चैनल्स, कोविड से पहले जो ग्राफ होता था टेलीविजन का बहुत ज्यादा होता, बट अब डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप ग्राफ देखोगे 86% जो डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग की, मोस्टली जो मार्केटिंग हो रही है वो डिजिटल मार्केटिंग पे ज्यादा शिफ्ट कर लिया है कंपनी ने अपना फोकस। इवेंट्स भी हो रहे हैं, प्रिंट एडवर्टाइजिंग भी हो रही है, टेलीविजन पर, रेडियोज पर, बाकी अदर प्लेटफॉर्म से भी एडवर्टीजमेंट हो रही है। इट्स नॉट लाइक कि बाकी जगहों पर बंद हो गई है, बाकी जगहों पर भी एडवर्टीजमेंट हो रही है, बट मैक्सिमम जो फोकस था एडवर्टीजमेंट का वो डिजिटल मार्केटिंग पर शिफ्ट हो गया है। तो ऑब्वियसली आप आज इंटरनेट यूज कर रहे हो, इंडिया में जितने भी यंग जनरेशन है, जितने भी ऑडियंस हैं जो टेक्नोलॉजी सेवी हैं, जिनके पास फोन है, जिनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी, ऑल दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। कुछ कंज्यूमर्स हैं, कुछ बेसिकली एडवर्टाइजर्स हैं, कुछ बिजनेस ओनर्स हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स का जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा है, कंज्यूमर्स का नंबर बहुत बड़ा है, बिजनेस ओनर्स का नंबर बहुत छोटा है। तो एवरीवन वांट टू टैप इनटू दिस मार्केट with the help of a right digital marketing strategy, and for that they need a right digital marketing person who have the correct knowledge to implement their strategy and to bring out the good results to the company। ऑलराइट, ये दिस इज सम ऑफ द पार्ट की स्कोप क्या है। ठीक है, अगर मेनली यही डाउट होता है अगर हम कभी भी किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाने का प्लान करते हैं, तो अगेन द वाइज डिसीजन इज टू हैव द टू लुक आउट द स्कोप इन दैट पर्टिकुलर फील्ड कि आने वाले टाइम में, आज से आने वाले 5-10 साल में उसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली शोइंग यू द स्कोप ऑफ द मार्केटिंग, द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर स्किल। इसके अलावा आप जॉब्स के देखो, जॉब्स तो भर भर कर आप किसी भी जॉब पोर्टल पे जाओ और वहां पर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप जॉब सर्च करो, यू विल गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन योर सिटी टू। ठीक है, बहुत सारी जितनी भी कंपनीज है, ऑल दो यहाँ पर बेस्ट पार्ट पता है क्या है, यहाँ पर आप जिस कंपनी में देखो सब जगह डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट अगर आज आप गवर्नमेंट को भी देखोगे ना, गवर्नमेंट तक को भी डिजिटल मार्केटर्स की रिक्वायरमेंट है। अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स को दे हैव डिसाइडेड टू पे 8 LPA, 8 लाख पर एनम। ठीक है, जो उनकी जो स्कीम्स है उनको प्रमोट करेगा तो गवर्नमेंट उनको सैलरीज देंगी। सो दैट इज द पावर ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग राइट नाउ, कि अगर आपके पास सही पावर है एंड इफ यू आर यूटिलाइजिंग इट इन अ राइट वे, देन स्काई इज द लिमिट फॉर योर अर्निंग। आप जॉब के थ्रू भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग के थ्रू भी कर सकते हो, और अपने बिजनेस के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। दैट इज द पार्ट। बट मेन चीज ये होती है कि
क्वेश्चन ये है कि हमने तो इतना लेट स्टार्ट करा है और इतने सारे लोग आज ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुके हैं, मार्केट में सैचुरेशन आ रहा है, तो क्या ये सही टाइम है? क्या आने वाले टाइम में भी ऐसी डिमांड बढ़ेगी? बट अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप खत्म हो जाएगा आने वाले 2-3 साल में, सब एआई टेक ओवर कर लेगा और ये सब चीजें। तो देखो यार, ये मार्केट में ना सब चीजें चलती रहती हैं। जब हम लोग कॉलेज में थे, आप भी अभी हो सकता है, कुछ लोग कॉलेज में हो सकता है, कुछ लोग अपने जॉब के एक पीक पर हो, तो जब हम कॉलेज में थे उस टाइम पे भी यही बोला जाता है कि आप जो फील्ड परस्यू कर रहे हो उसका आने वाले टाइम में स्कोप खत्म हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। दैट इज जस्ट अ वे ऑफ टॉक कि हाँ, आपको डाइवर्ट किया जाए। अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा आप लेट हो गए हो, तो उस केस में आपको पहले थोड़ा सा समझना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट फर्स्ट, ठीक है। आज बेसिकली एक सर्वे था जहां पर मल्टीपल कंपनी से पूछा गया कि आपके लिए आज मार्केटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आपकी कंपनी के लिए मार्केटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो यू नो व्हाट, 65% कंपनीज जो कंपनीज हैं, लेट सपोज देयर इज अ कंपनीज इन द वर्ल्ड, 65% कंपनीज का सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपनी वेबसाइट पर एक सही ट्रैफिक और लीड्स जनरेट करना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर द सर्विस बेस्ड बिजनेसेस, मतलब वो सर्विस दे रहे हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेसेस कैसे हुए कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस, सॉरी ट्रैवल पैकेजेस। इसके अलावा आप जैसे अपने घर में जैसे आपको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ठीक है, दीज आर द सर्विस बेस्ड बिजनेसेस। स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, दीज आर सर्विस बेस्ड बिजनेसेस। और इनका काम तभी चलता है जब इनके पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है, वो प्रोस्पेक्ट इनको कॉल करता है एंड देन दे बेसिकली नेगोशिएट एंड दे ऑफर देयर सर्विस टू देम। तो ऐसे सर्विसेज बिजनेस के लिए रेगुलरली लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनको हम लीड्स बोलते हैं। लीड्स मतलब जो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इन लोगों के साथ एंड देन दे ऑफर देयर सर्विसेज एट अ गिवन प्राइसेस। तो 65% कंपनीज के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ट्रैफिक और लीड्स जनरेट करना है। 43% कंपनीज के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेकर आना है जो भी वो मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। 28% कंपनीज के लिए इनफ बजट सिक्योर करना है। 26% कंपनीज का जो चैलेंज है वो वेबसाइट को मैनेज करना, मतलब इन लोगों से अपनी वेबसाइट ही नहीं संभल रही है, दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर वेबसाइट इन अ प्रॉपर वे। 25% कंपनीज का चैलेंज है कि राइट टेक्नोलॉजीज, उनकी कंपनी के लिए सही टेक्नोलॉजी क्या है वो आइडेंटिफाई करना, कि जिससे वो अपनी मार्केटिंग को और अच्छा इंप्रूव कर सकें, ठीक है। तो यू कैन सी दैट 25% कंपनीज दे आर फेसिंग दिस पर्टिकुलर चैलेंज कि उनके लिए राइट टेक्नोलॉजी क्या है, एंड मे बी दे आर रनिंग विद द लैक ऑफ द एम्प्लॉयज हु कैन गाइड देम कि दिस इज द राइट टेक्नोलॉजी टू change our marketing strategy and to have better results from the market. 23% कंपनीज दे आर यूजिंग कि टारगेटिंग कंटेंट की इंटरनेशनल ऑडियंस को कैसे टैप करें। 19% का चैलेंज है टीम को कैसे ट्रेन करें। 17% का चैलेंज है कि टॉप टैलेंट को कैसे हायर करें। बाकी जो 8% का चैलेंज है वो है कि हाँ एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर कैसे हायर करें। तो इफ यू कैन सी 65% ऐसे हैं कि जिनको प्रॉपर लीड्स नहीं मिल रही है, सही ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। 25% ऐसे हैं कि जिनको राइट टेक्नोलॉजी का ही नहीं पता। 26% बोल रहे हैं कि हमसे वेबसाइट मैनेज नहीं होती। तो यू कैन सी द टॉप चैलेंजेस दैट कंपनीज आर फेसिंग, क्योंकि कंपनीज में अगर आप देखोगे टॉप लेवल पर जो बैठे हैं, दे आर बेसिकली स्टिल दे आर नॉट अवेयर अबाउट द स्कोप और द पोटेंशियल ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। So every company now wants to hire the new professionals who have the complete knowledge of the digital marketing and they can implement it in their companies. All right. So let's come to the other part. See, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा लेट हो चुके हो या फिर इंडिया में कैसे आपको स्टार्ट करना है, तो इन दैट केस देखो, इंडिया में 46% जो भी एडवर्टीजमेंट हो रही है वो ऑनलाइन होती है, ठीक है। और ऑनलाइन में दो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं जो आप भी रेगुलरली यूज करते हो उनके प्लेटफॉर्म्स को। एक हो गया आपका गूगल और दूसरा हो गया आपका मेटा, ठीक है। मेटा इन द सेंस फेसबुक, और फेसबुक का ही अपने प्लेटफॉर्म है, अपना खुद का फेसबुक तो है ही, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया। गूगल के अपने खुद के प्लेटफॉर्म जो गूगल सर्च आप यूज करते हो, यूट्यूब आप यूज करते हो, इसके अलावा प्ले स्टोर यूज कर रहे हो, जीमेल यूज कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जो गूगल के हम यूज कर रहे हैं। तो इंडिया में ये दो बड़े प्लेयर, इनफैक्ट वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे दो बड़े मार्केटिंग प्लेयर्स हैं जहां पर एडवर्टीजमेंट की मार्केट में इनका एक बहुत बड़ा शेयर है। इंडिया में अगर 1 रुपये, मतलब अगर 3 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 1 रुपए यहाँ पर गूगल या फिर मेटा को जाता है। इन दोनों का अगर आप कंबाइंड शेयर देखोगे इंडिया में तो वो 82% है डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट में। इस फिगर के बाद भी, मतलब
अगर 46% अभी भी एडवर्टाइजिंग इंडिया में हो रही है, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये आगे बढ़ेगा जिस हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ रही है। 82% मार्केट शेयर है गूगल और मेटा का इंडिया में। स्टिल अभी भी अगर हम यूनाइटेड स्टेट से इंडिया को कंपेयर करें तो वो अभी भी हम सिर्फ 2.5% ही यूटिलाइज कर रहे हैं अपने पूरे पोटेंशियल का। जो हमारी पूरी मार्केटिंग बढ़ रही है, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, स्टिल इट इज जस्ट 2.5% ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो this number will going to increase and it shows that still we are into the starting stage of this particular digital marketing era. इंडिया की डिजिटल मार्केटिंग में पोटेंशियल है कि आने वाले 10 साल में ये 4 से 5 गुना बढ़ सकता है। 4 to 5 times इट कैन इंक्रीज। अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो तो स्टिल यू हैव अ चांस दैट यू कैन बिकम द टॉप 1% इन द कमिंग 5 years। आज भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो बहुत लेट हो गए, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स ऐसे हैं जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और अब तो सक्सेसफुल हो गए, अब तो नया हम कुछ स्टार्ट ही नहीं कर सकते, हम तो बहुत पीछे रह गए, हमें कोरोना के टाइम पे स्टार्ट करना था। गाइस ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस टाइम पे जैसे भी स्टार्ट करो स्टिल देयर इज अ स्पेस, स्टिल वी आर इनटू द स्टार्टिंग मार्केट। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज जो अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, जिस हिसाब से वर्ल्ड बहुत डायनेमिक है, स्किलफुल पर्सन्स की बहुत डिमांड है। एक फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है कि जहां पर लोग जॉब नहीं करते, अपने फ्री टाइम में अपना काम करते हैं। मतलब जब उनको लगता है फ्री टाइम है उस टाइम में अपना काम करते हैं एंड दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट, इनफैक्ट मोर देन द पर्सन हु इज अर्निंग इन अ जॉब सेक्टर। फ्रीलांसिंग का भी कॉन्सेप्ट है। और अभी लिंक्डइन के फाउंडर ने एक बेसिकली एक इंटरव्यू दिया था, जो शायद उनका थोड़ा सा पुराना इंटरव्यू है, वो भी बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि आने वाले 10 साल में ना मार्केट का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये जो 9 to 5 वाली जॉब्स है ना, हो सकता है आने वाले 10 साल में ये कंप्लीटली खत्म ही हो जाए और कंपनीज फुल टाइम एम्प्लॉयज को हायर ना करके हो सकता है ये फ्रीलांसर्स को हायर करें, जिनके पास एक अच्छी नॉलेज हो, उनके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो हो, ताकि वो एम्प्लॉयज की कॉस्ट को सेव कर सके और काम को जल्दी से जल्दी वाइंड अप कर सके। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका ना ये वाला पार्ट भी। जस्सी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है और वहां पर ये बोल रहे हैं जो लिंक्डइन का फोल्डर है, दे फील्स दैट 9 to 5 जॉब्स विल बिकम अ रेलिक ऑफ द पास्ट बाय 2034। तो कई एक चीज आप देखो, अभी कोविड किसी ने भी ना इमेजिन नहीं किया था, स्टिल कोविड हैपेंड। ठीक है, और कोविड में कितने लोगों ने अपनी जॉब्स खोई, कितने लोगों ने लाइव्स खोई, कितने लोगों ने बिजनेस अपने खो दिए, बट स्टिल कोविड के बाद भी स्टिल मार्केट क्या हुआ, मार्केट डाउन गया और स्टिल मार्केट उठी, फिर से डिमांड बढ़ी। ठीक है, और अब फिर से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जिस हिसाब से आप मार्केटिंग कंडीशंस देख रहे हो, जिस हिसाब से आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स देख रहे हो कि कंट्रीज में वॉर हो रहे हैं, मार्केट की आप पोजीशंस देख रहे हो, मार्केट डाउन जा रही है। आने वाले टाइम में ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में, 2-3 सालों में हो सकता है कि वर्स्ट रिसेशन भी पूरे वर्ल्ड देखे। ठीक है, रिसेशन में बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी, मार्केट डाउन जाएगी। तो इन दैट केस कोविड हम अभी ऑलरेडी फील कर चुके हैं, अभी फेस कर चुके हैं कोविड को। तो इंस्टेड कि हम सिर्फ जॉब पर फोकस करें कि नहीं हमें सिर्फ एक जॉब चाहिए, व्हाई नॉट फोकस ऑन द जॉब प्लस फ्रीलांसिंग प्लस बिजनेस ऑल्सो, कि अगर आपके पास एक चीज नहीं है तो क्यों इसी एक चीज पर डिपेंडेंट होना है 100%। आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए और दूसरे ऑल्टरनेटिव के साथ आपके पास तीसरा ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज डिजिटल मार्केटिंग आपको ये तीनों ऑल्टरनेटिव देता है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में आपके पास एक अपना लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप घर से भी अपना काम कर सकते हैं। यू कैन हैव दैट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम विद द यूज ऑफ द इंटरनेट एंड द लैपटॉप ओनली। एंड ये बेसिकली जब हम इस वे में सोचते हैं तो वी कैन हैव द मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बाय यूजिंग द डिजिटल मार्केटिंग स्किल। सिर्फ जॉब के लिए नहीं, सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए नहीं, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं। ठीक है, हमें इन तीनों चीजों के लिए सोचना है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द कमिंग टाइम। ठीक है, तो इन दैट केस वी हैव टू हैव अ स्किल, जहां पर अगर आप कहीं पे भी जाते हो आपके पास जॉब भी नहीं है, स्टिल इफ समवन कम्स टू यू एंड ही कैन आस्क यू दैट व्हाट यू कैन डू फॉर मी, तो यू कैन से हिम कि ओके आई कैन ग्रो योर बिजनेस, मैं आपका बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, आई डू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज। ठीक है, और किसी को भी अपना बिजनेस ग्रो करना बुरा नहीं लगेगा अगर आप उसकी हेल्प करोगे, तो ऑब्वियसली इफ यू आर डूइंग इन अ राइट वे दे विल गोइंग टू पे यू। तो यू हैव टू बी लाइक दैट पर्सन कि अगर आप कोई आपसे पूछे कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, यू हैव आंसर, एंड डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द फील्ड। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स का कुछ डाउट है, तो यू कैन आस्क एंड देन विल बी स्टार्टिंग। मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा, जिसमें प्रैक्टिकली हम करेंगे बेसिकली कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट होती है एंड कैसे हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। गाइस किसी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन?
ऑलराइट, चलो कूल। श्योर श्योर धनंजय, यू कैन जॉइन द लैब। यस आयुष, यू कैन आस्क। नहीं राजीव जी, एज फैक्टर कुछ नहीं है यहाँ पर। बेसिकली इज अ स्किल, जिस एज में आप चाहो उसमें आप सीख सकते हो। आई हैव टॉट द स्कूल स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट द कॉलेज स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट द वर्किंग प्रोफेशनल, आई हैव टॉट द रिटायर्ड पर्सन ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसा कोई एज फैक्टर नहीं है, आप जिस एज में सीखना चाहो आप उस एज में सीख के उसकी मास्टरी ले सकते हो। यस, अवंतिका विल बी कवरिंग द मॉड्यूल्स। वो जैसे अभी मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, अभी तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग ही है, इंट्रोडक्शन ही पार्ट था। ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग करा है, बस आप बताऊंगा कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, क्या इसमें प्लेसमेंट का रहेगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने का एम क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्कॉलरशिप बेस्ड पी क्या होगा। वो मेनली डिपेंड करूंगा, ओम प्रकाश सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बट लेट जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड, ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस मैं एंड में लूंगा, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपको लगता है कि डाउट है, वो आप प्लीज नोट डाउन करके रखो। At least you are here. If you are giving your time, then please understand and please learn something new. आज आपको कुछ नई चीज मैं सिखाने वाला हूँ और प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ कि जो हम डेली बेसिस पे करते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर। ठीक, चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ कि हम क्या सीखने वाले हैं आज और कैसे काम होता है। देन उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। नहीं राजीव जी, ऐसा कुछ एज फैक्टर नहीं होता, स्किल है। अगर कोई भी पर्सन, एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी अगर किसी बिजनेस के लिए काम करके दे रहा है तो दे विल हैप्पीली, बेसिकली हैप्पीली रिक्रूट देम। ठीक है, रिक्रूट है। चलो गाइस देखो, थोड़ा सा आप बेसिक समझना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। बिल्कुल आयुष, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, चलो गाइस देखो, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली आप इतना समझो कि है क्या डिजिटल मार्केटिंग। इसको आप ऐसा समझो कि आपके पास एक इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट जहां पर आप एक पर्टिकुलर इस टूल से पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो। ठीक, एक हमारी रियल लाइफ है। रियल लाइफ में आपकी जो कनेक्टिविटी का लेवल है वो लिमिटेड है। ठीक है, कि आप अपने आसपास जो सराउंडिंग एरिया है सिर्फ वहां के लोगों तक कनेक्टेड हो अनटिल अनलेस यू आर ट्रैवलिंग रेगुलरली। इंटरनेट पर आप अपने एक जगह पर बैठ के पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हो बाय सिंपली यूजिंग द सोशल मीडिया नेटवर्क्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है कि आप इंटरनेट का यूज करते हो फॉर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, आपके पास अगर प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है तो आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज या फिर अपनी क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करते हो बाय यूजिंग द इंटरनेट। एंड कहां पर प्रमोट करते हो, ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिन पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है, जैसे आपके फोन्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, टीवी हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए। मतलब जिन जिन पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है आप उन पर बेसिकली क्या करते हो, अपना प्रमोट करते हो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू रीच द पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, ऐसे लोगों तक पहुंचना जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उनके डिवाइस में इंटरनेट चल रहा है और उन लोगों तक एक सही टाइम पे वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अगर सर्च कर रहे हैं उस टाइम पर अपना एडवर्टीजमेंट उनको शो करना। ठीक है, एट देन मार्केटिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, आप किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हो मार्केटिंग है तो कि नहीं हमारे ही परचेस करो। योर वर्क इज टू शोकेस योर एडवर्टीजमेंट टू द राइट पर्सन एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेटफॉर्म विद अ राइट मैसेज ऑनली। ठीक, तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यह है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग हम कहाँ पर कर रहे हैं, इंटरनेट पर कर रहे हैं और उन डिवाइसेस पे कर रहे हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, और उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हम टारगेटिंग बेस्ड रखते हैं। टारगेटिंग जैसे कि किसी यूजर की एज क्या है, हम एज के हिसाब से मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी का जेंडर क्या है, जेंडर बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी का इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के बेस पे मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी का मेनली अगर आप बोलो कि लोकेशन क्या है, लोकेशन के बेस पे मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी की लैंग्वेज क्या है, उसके लैंग्वेज के बेसिस पे मार्केटिंग कर सकते हैं। ये मेनली एक पार्ट होता है जिसमें आप सिंपल लैंग्वेज में डिजिटल मार्केटिंग समझ सकते हो। ठीक है, नॉर्मल जो मार्केटिंग होती है उसमें सिंपल हम अपना एड शो करते हैं जहां पर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं आते कि इतनी सारी टारगेटिंग के साथ अपने यूजर को, अपनी ऑडियंस को अपना एड दिखा सकें। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें हैं। इंटरनेट अगेन इट इज अ टाइप ऑफ द वर्ल्ड। अब इस वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने के लिए वी नीड टू हैव अ ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है, हमें अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, अगर रियल लाइफ में बोलूं कि रियल लाइफ में आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे होती है, वो होती है आपके घर से।
जिस घर में अभी बैठे हो और जहां से आप अपनी क्लास ले रहे हो सकता है घर में हो गए, हो सकता है ऑफिस में हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप बैठे हो वो आपकी प्रेजेंस शो करता है इन द रियल लाइफ वर्ल्ड, ठीक है। अर्थ पर एक छोटी सी जगह है जहां पर आपका घर है, दैट इज शोइंग योर प्रेजेंस। ऐसे ही इंटरनेट पर आपकी प्रेजेंस शो करने के लिए एक छोटी सी जगह हमें लेनी पड़ती है, और वहां पर हम बनाते हैं अपनी खुद की एक वेबसाइट, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्या होता है, ऑनलाइन ऑफिस बोलो इसे, या फिर आपका ऑनलाइन घर होता है। कि इंटरनेट की दुनिया में कोई भी आपको ढूंढे तो एटलीस्ट देयर शुड बी अ प्लेस जहां पर ढूंढते हुए वो आपको आपको ढूंढते हुए आ सके और आपके बारे में ज्यादा जानकारी ले सके, ठीक है। तो जो कहानी स्टार्ट होती है वो कहानी स्टार्ट होती है आपकी वेबसाइट से। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस। तो हमारा जो सेंटर पॉइंट होगा दैट विल बी द वेबसाइट। हर कंपनी का, हर बिजनेस का एक सेंटर पॉइंट होता है, वो होता है उनकी वेबसाइट, ठीक है। अब इंटरनेट पे जैसे मैंने बताया बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं। तो वहां पर एक प्लेस हो गया आपका सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे भी आप देखोगे तो आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टा हो गया, ठीक है, आपका लिंक्डइन हुआ, ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, टिकटॉक हो गया, ठीक। इसके अलावा स्नैपचैट हो गया। तो ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके सोशल मीडिया में आते हैं। इसके अलावा फिर गूगल हो गया, गूगल का अपना खुद का प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आपके ईमेल्स हो गए, ईमेल्स अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स हो गए। इसके अलावा आप देखते हो कि जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे आपके डिस्प्ले नेटवर्क्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, उन प्लेटफॉर्म से आप आते हो। और बाकी जो वेब हैं, जो बाकी जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म से यूजर्स क्या करते हैं, कहीं से भी आपको ढूंढते हैं और ढूंढ कर आपकी वेबसाइट पर आते हैं। तो जो सेंटर पॉइंट होता है हमेशा डिजिटल मार्केटिंग का, वो होता है आपकी वेबसाइट। आपको कुछ ऑनलाइन परचेज करना है, आप क्या करोगे, या तो अमेजोन पर जाओगे, अमेजोन की वेबसाइट पर जाओगे, या फिर उसकी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। एप्लीकेशन अगेन इट इज योर ऑनलाइन प्रेजेंस ऑन द इंटरनेट, ठीक। ऐसे ही आपको कुछ सर्विस लेनी है, तो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ऑब्वियसली व्हाट यू विल डू इज यू विल गो टू द कॉलेज वेबसाइट एंड यू विल अप्लाई फॉर द एडमिशन ओवर देयर। तो देयर हैज टू बी अ ऑनलाइन प्रेजेंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट से। तो एज अ डिजिटल मार्केटर सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, और वेबसाइट भी हम जो सीखते हैं वो ऐसी वैसी नहीं, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सीखते हैं। तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ वेबसाइट का। अभी जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, जो मेरी स्क्रीन देख रहे हो, दैट इज बेसिकली द लाइव वेबसाइट। और ये लाइव वेबसाइट बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर किसी भी टाइप की कोडिंग की या प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है। आप जिस भी एज में हो, जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है, आपको किसी चीज की कोई भी प्री डिफाइंड नॉलेज की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपकी क्रिएटिविटी के बेसिस पर अपनी खुद की एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम में। और इस वेबसाइट को आगे हम यूज करेंगे किस लिए, चाहे हमें कहीं पे प्रमोशन करना है, उस पर ऐड चलाने हैं, सोशल मीडिया पर ऐड चलाने हैं, वहां के लिए। तो मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, बस आई जस्ट वांट योर कंप्लीट अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, ठीक है। सारे क्वेश्चन एंड में मैं लूंगा। तो गाइस ये एक कोरा पेज है, मतलब वेबसाइट का मुझे एक पेज बनाना है, एंड यू कैन आल्सो से इट एज अ लैंडिंग पेज। एक पेज बनाना है जो मैं आगे एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करूंगा, बट अगेन यूज करने के लिए मुझे वेबसाइट चाहिए। तो अब ये क्या है, ये एक टूल है, जब हम क्लास में आएंगे तो वहां पे आपको बताऊंगा। लेट मी शो यू हाउ इजी इट इज। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ ऐसी टेम्पलेट्स हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ फॉर द वेबसाइट। मुझे चाहिए इंटीरियर डिजाइनिंग की। लेट्स सपोज मेरा एक क्लाइंट है जो इंटीरियर डिजाइनर है, एंड उसको अपनी एक वेबसाइट बनानी है फॉर द इंटीरियर पार्ट। तो यहाँ पर मुझे एक इंटीरियर से रिलेटेड कोई और देख लेते हैं जो एक अच्छा मिले। लेट्स सपोज दिस इज द पार्ट। ये देखो, ये एक वेबसाइट है, मुझे अच्छी लग रही है। इसका मुझे सारा कंटेंट चेंज करना है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इम्पोर्ट इट, ठीक है। इसको मैं पूरा इंपोर्ट कर लूंगा। और इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये देखो एक छोटे से टाइम में मेरे ये इंपोर्ट हो गया। तो मैं आपको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ ये कैसी लगेगी, ठीक है। हार्डली 2 मिनट में मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन गया, एक ढांचा बन गया वेबसाइट का, कि हाँ मुझे ऐसे बनानी है, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए वेबसाइट पे, एक तो पीछे वाली जो इमेजेस है वो चेंज करनी है, ये चेंज करना है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये सब मुझे चेंज करना है, ठीक। अब डिजिटल मार्केटिंग में मैंने आपको बताया था कि एआई भी धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि न्यूज सुन रहे होगे कि एआई लोगों की जॉब ले रहा है, जॉब खा रहा है एआई लोगों की। तो गाइस एआई जॉब नहीं खा रहा, जो लोग एआई को नहीं सीख रहे उनकी जॉब खा रहा है एआई। तो ऐसे ही एक एआई टूल है जो हमें हेल्प करेगा, ये जितना भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट लिखने में। एंड कुछ ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स है जिनको हम यूज करेंगे जहां से हम एचडी इमेजेस ले सकें, जिससे क्लाइंट भी खुश हो। तो अब देखो, मुझे सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है। मैं आता हूँ एंड मैं पहले यहाँ से इमेज चेंज कर लेता हूँ, और आप देखना एक भी कोड नहीं लिखूंगा मैं। फ्री इमेजेस पर आया, मुझे चाहिए इंटीरियर से रिलेटेड इमेजेस। और हार्डली 10 to 15 मिनट्स में एक अच्छी वेबसाइट मैं आपके सामने भी बना के दिखा दूंगा।
लेट सपोज मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है, ठीक है, ये देखो बैकग्राउंड इमेज चेंज हो गई। ठीक, ये वाली इमेज भी चेंज करनी है मुझे, जो यहाँ पर ये वाली इमेज है, इस पर क्लिक करा, इमेज चूज की, एंड लेट सपोज मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक, हार्डली 2 मिनट में ये काम हो गया। अब मुझे ये चेंज करना है। अब इसको चेंज करने के लिए मुझे चाहिए एआई टूल, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना आज, आपको सर्विस देनी है, और सर्विस में आप एज अ स्मार्ट डिजिटल मार्केटर हो, तो आपको जितने एआई टूल्स हैं वो आपको अपने लिए यूज करने हैं। ठीक, तो एआई टूल्स बहुत सारे हैं, जैसे वन ऑफ द एआई टूल्स सी, यहाँ पर बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर चाहिए एक मार्केटिंग, जो वेबसाइट से मैं कंटेंट क्रिएट कर सकूँ, वेबसाइट के लिए वेबसाइट कंटेंट मुझे चाहिए यहाँ पर क्रिएटिव होम पेज के लिए। इट इज वन ऑफ द एआई टूल दैट आई कैन यूज। तो मुझे चाहिए यहाँ पर, लेट सपोज मेरा ब्रांड का नाम है सोम इंटीरियर्स, एंड यहाँ पर मुझे इसे बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो वी आर प्रोवाइडिंग द इंटीरियर डिजाइनिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, हु इज योर आइडियल कस्टमर, और आइडियल कस्टमर्स आर दोस पीपल who wants to have their interior change in the coming months। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स आप कर सकते हो, मैं इसमें कंटेंट क्रिएट करवा लेता हूँ। ये देखो मेरे पास कंटेंट आ गया, पूरी वेबसाइट का जो मुझे कंटेंट लिखना था वो आ गया। ट्रांसफॉर्म योर स्पेस, ट्रांसफॉर्म लाइफ, लेट्स हैव दिस। आ जाते हैं यहाँ पर, वेबसाइट में यहाँ पर आया, मुझे ये वाला चेंज करना है। देखना आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में टेक्स्ट आ गया, सिंपल, इतना सा। तो अभी आप देखोगे हार्डली 2 से 3 मिनट में मैंने वेबसाइट का जो फेस है वो चेंज कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, ये एक पार्ट हुआ जो मैं आपको एआई वाला पार्ट बता रहा हूँ, और अभी तो एआई से हम बहुत सारी चीजें करेंगे, हम वीडियोस भी बनाएंगे प्रमोशन के लिए और बहुत सारी चीजें करेंगे। इट इज जस्ट लाइक आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में या फिर ऑनलाइन वर्ल्ड में अभी हो क्या रहा है, और लोग कैसे इसको ग्रो कर रहे हैं। नाउ लेट्स हैव दिस पर्टिकुलर सब हेडलाइन टू। ये मेरे पास एक सब हेडलाइन है जो मुझे यहाँ से चेंज करना है। तो आप देख रहे हो, दैट इज नोन एज द स्मार्ट वर्क, कि मुझे ज्यादा कुछ काम नहीं करना, एक बने बनाई चीज थी मेरे पास, मैंने इमेज लेके चेंज करी। देन कंटेंट के लिए मेरे पास एआई टूल्स हैं, मैं उनको यूज करूंगा, एंड देन हार्डली मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट करना है। इसका कलर आप देखोगे ब्लैक है, मुझे इसका कलर चेंज करना है टू द वाइट, मैं इसका कलर चेंज कर लूंगा। डन, मेरा जो पार्ट है यहाँ तक एक रेडी हो गया, जो मेनली मेरा एक फेस है मेरी वेबसाइट का, डेट इज रेडी। अब ऐसे ही मुझे ये वाला पार्ट करना है कि यहाँ पर मुझे कुछ कोड है, इस कोड को चेंज करना है, तो आई कैन चेंज द कोड फ्रॉम हेयर ऑल्सो, कि यहाँ पर मुझे कुछ आता है, तो यहाँ पर हु आर वी, यहाँ पे अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन भी है। तो जो मुझे कंटेंट राइटर से हेल्प लेनी थी वो भी मैंने हटा दिया, मुझे नहीं चाहिए कोई कंटेंट राइटर, आई कैन सोनली डू दिस। और लेट सपोज कि ये क्लाइंट मेरे पास आया है और मैं इससे इजिली चार्ज कर रहा हूँ वेबसाइट के 10 to 15,000। और अब देखो कंटेंट भी बना बनाया है मेरे पास, सारी इमेजेस भी बनी बनाई है, एच डी इमेजेस यूज कर रहा हूँ, और इसको एक परफेक्ट वेबसाइट में बना के दे दूंगा। एंड बिकॉज आई एम इन टू द प्रैक्टिस, तो मैं एक दिन में वेबसाइट बना के दे सकता हूँ। आप सीखोगे तो आपके लिए 5 से 7 दिन लगेंगे, स्टिल 5 to 7 days नॉट अ बैड डील टू हैव दैट 10 to 15,000 विथ यू। क्लियर? तो दैट इज द पार्ट, हाउ वी कैन क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है, यू कैन सी कि हाउ इजी इट इज टू क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक, अब देखो गाइस, हमने पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था वेबसाइट क्रिएशन का। वेबसाइट क्रिएशन हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, और सारा पार्ट ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, एक कोड नहीं लिखना, हमें एक लाइन का कोड नहीं लिखना। अब वेबसाइट बनाने के बाद सेकंड पार्ट क्या होता है, देखो, जब यूजर को या फिर आप एज अ जनरल यूजर हो, आपको जब जरूरत होती है, ठीक है, व्हेन यू आर इन नीड एंड यू नीड सम इन्फो, तो आप कहाँ जाते हो, किस प्लेटफॉर्म पर जाते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको कुछ रिसर्च करनी होती है, आपको कुछ परचेज करना होता है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हो फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इन दैट केस आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो। ऑब्वियसली गूगल। अवंतिका, यू आर नॉट गोइंग टू द चैट जीपीटी फॉर परचेजिंग एनीथिंग, यू आर गोइंग टू द गूगल। ठीक है, अब देखो, गूगल पर जब आप सर्च करते हो तो आपके पास क्या आता है, गूगल पर सर्च करने पर आपके पास आती हैं बहुत सारी वेबसाइट्स। ठीक है, लेट सपोज
आई वांट टू नो हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है। मैंने यहाँ पर ये सर्च करा, और सर्च करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, द फर्स्ट इज अ वेबसाइट, देन सेकंड इज अ वेबसाइट, थर्ड इज आल्सो अ वेबसाइट, देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स दैट आर कमिंग ओवर हियर। तो अब हमारा नेक्स्ट गोल क्या है? वेबसाइट बनाने के बाद नेक्स्ट गोल है हमें अपनी वेबसाइट को गूगल पर लेकर आना है। ठीक है, दैट इज द सेकेंड पार्ट। क्यों गूगल पर लेकर आना है? वो इसलिए जरूरी होता है गाइस, जब भी कोई आपके बारे में सुनता है, आपके बिजनेस के बारे में सुनता है, आपके क्लाइंट के बिजनेस के बारे में सुनता है, या फिर आप भी किसी ब्रांड के बारे में फर्स्ट टाइम सुनते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? इमीडिएटली गूगल ओपन करते हो और गूगल पर उसके बारे में सर्च करते हो। अगर गूगल पर उसका बिजनेस नहीं मिला तो ऑब्वियसली आपके माइंड में भी ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि यार ये तो गूगल पर शो ही नहीं कर रहा, इसकी तो अपनी कोई वेबसाइट ही नहीं है, तो इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? कहीं स्कैम तो नहीं हो रहा अपने साथ? क्लियर? बहुत बार होता है अपने साथ ना। तो पहला हमने क्या करा, पहला जो हमारा घर था, हमें अपना घर बनाया कि भाई इंटरनेट पे कोई कभी भी चाहे हमें कहीं से भी ढूंढ सकता है। सेकंड पार्ट, अब हमें क्या करना है, जहां पर ट्रस्ट के लिए लोग जाते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं, नीड के लिए जाते हैं, हमें अपनी वेबसाइट को यहाँ पर लेकर आना है, गूगल पर। अब गाइस गूगल पर लाने के ना दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज थ्रू विच यू कैन ब्रिंग योर वेबसाइट टू द गूगल। फर्स्ट होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोनों क्या होते हैं मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, सेकंड होता है हमारा गूगल एड्स। दोनों कैसे होते हैं, गूगल एड्स कैसे होता है, वो दोनों मैं समझाऊंगा। एक होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है गूगल एड्स। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ये होता है फ्री पार्ट, जिसमें आपको ना कुछ भी पे नहीं करना होता गूगल को। आपको बस थोड़ा सा टाइम लगता है, गूगल के जो पॉलिसीज होती हैं, गूगल की जो गाइडलाइंस होती है, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है अपनी वेबसाइट पर, और धीरे धीरे आपकी वेबसाइट गूगल पर आना स्टार्ट हो जाती है, उसकी रैंकिंग इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड होता है गूगल एड्स, जहां पर हम गूगल को कुछ अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, और गूगल हमारे एड शो करता है ऑन द टॉप पेजेस, टॉप ऑफ द पेज गूगल हमारे ऐड शो करता है। अब क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर कि टॉप ऑफ द पेज ही क्यों शो करता है, बॉटम ऑफ द पेज क्यों नहीं शो करता? और एसईओ में हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाते हैं तो क्यों बढ़ाते हैं, क्या रीजन होता है, क्यों हमें गूगल पर ऊपर आना होता है? तो गाइस उसका भी मैं आपको एक आंसर देता हूँ, लॉजिक है। ठीक है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। देखो, जब भी आप गूगल पर ना कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, पहली बात, गूगल पर आप क्यों आ रहे हो? गूगल पर आप आ रहे हो क्योंकि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए आप गूगल पर आ रहे हो। ठीक, बहुत बार ऐसा होता होगा, आप बहुत इमरजेंसी में गूगल पर सर्च करते हो और आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन चाहिए होता है। अब जब गूगल पर आप सर्च करते हो तो मोस्टली 90% यहाँ पे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, गूगल पर सर्च करने के बाद ना आप फर्स्ट सेकंड या मोस्टली थर्ड वेबसाइट पर क्लिक करके वहां पर अपना आंसर ले लेते होगे। बहुत रेयरली होता होगा कि आप स्क्रॉल करके बहुत नीचे तक जा रहे हो, या फिर सेकंड पेज पर जा रहे हो, या थर्ड पेज पर जा रहे हो। होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट बहुत रेयरली होता होगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता होगा कि आपके सामने कुछ भी आपने सर्च करा, जो पहली वेबसाइट आई, दूसरी वेबसाइट आई, वहां पर आपने क्लिक करा और वहां पे अपना अपना आंसर ले लिया। ऑलराइट, ये मेनली होता है, हर बार होता है ये। तो इसीलिए जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उस केस में हम चाहते हैं कि अगर गूगल पर हमें लेकर आना है तो हमारी वेबसाइट टॉप पोजीशंस पर आए। क्यों? क्योंकि 90% लोग ऐसे ही होते हैं, सर्च करने के बाद वो गूगल की टॉप लिंक्स पर क्लिक करते हैं, और मैक्सिमम जो बिजनेस होता है वो मैक्सिमम बिजनेस टॉप लिंक्स पर क्लिक करने वालों के पास चला जाता है, जिनकी वेबसाइट टॉप पोजीशन पर आ रही होती है। तो अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी, पहला था एसईओ। एसईओ के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें टाइम लगता है, बट ये फ्री होता है। ठीक है, या तो आप टाइम बचाते हो या पैसे बचाते हो। तो अब इसमें हमारे पास टाइम लगेगा, बट कुछ टाइम के बाद हमारी वेबसाइट रैंक होने लगेगी। अच्छा, अब टाइम कितना लगता है? देखो, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव होती है, तो उसमें हो सकता है कि 1 ईयर भी लग जाए, और हो सकता है कि 5 ईयर्स भी लग जाए। ठीक है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री साइज एंड इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिशन। कुछ इंडस्ट्रीज लेस कॉम्पिटेटिव होती है, तो उसमें हो सकता है कि 6 मंथ्स में ही आपकी वेबसाइट टॉप पोजिशन पर आने लगे। द कंडीशन इज कि यू आर वर्किंग रेगुलरली ऑन द वेबसाइट। सेकंड होता है कि यार मैंने तो आज बिजनेस स्टार्ट करा और मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है, मुझे इमीडिएटली रिजल्ट्स चाहिए, इमीडिएटली मुझे बिजनेस चाहिए, क्योंकि मेरे पास मेरी टीम है जिनको मुझे रेगुलरली सैलरी देनी है। तो इन दैट केस अपने पास ऑप्शन होता है एड्स का। ठीक है, एड्स में हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट पे करते हैं,
और अमाउंट पे करने के बाद अपनी वेबसाइट को टॉप पोजीशन पर लेकर आते हैं। आप टॉप पोजीशन पर क्यों लेकर आते हैं और कैसे लेकर आते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे लेकर आते हैं। और ये टॉप पोजीशन कैसी होती है, जिसमें हम कुछ कीवर्ड्स पर काम करते हैं। तो कोई भी यूजर अगर ऐसे ही इस कीवर्ड को सर्च करेगा तो इमीडिएटली उसे मेरा एड टॉप पोजीशन पर शो होगा, वो मेरे एड पर क्लिक करेगा, मेरी वेबसाइट पर आकर इंक्वायरी करेगा या फिर परचेज कर लेगा, और मेरा बिजनेस क्या होगा, धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको गूगल एड्स दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने अपना बिजनेस के मतलब मुझे अपने बिजनेस के लिए एक आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना है। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए मेरे नोन में अगर कोई भी नहीं है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, गूगल पर आऊंगा और सर्च करूंगा आईएसओ सर्टिफिकेशन। सिंपल इतना सर्च करूंगा। और सर्च करने के बाद अभी यहाँ पर कोई ऐड नहीं आ रहे, इसके बाद आपको क्या होगा, बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपको एड्स दिखते होंगे लाइक दिस। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो टोटल 7 एड्स हमारे गूगल पर चलते हैं, 4 सबसे ऊपर, 3 सबसे नीचे। और ये क्या है, ये सारे स्पॉन्सर्ड वाले एडवर्टीजमेंट्स हैं। ये एडवर्टीजमेंट्स कैसे होते हैं, जब भी कोई यूजर एक पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करेगा तभी एडवर्टीजमेंट आएंगे, अदरवाइज ये एडवर्टीजमेंट नहीं आएंगे। मतलब जो भी मैं पे करूंगा वो सिर्फ मैं रिजल्ट का पे करूंगा, अदरवाइज ऐसे पे नहीं करूंगा। तो अब मुझे वेबसाइट बना ली, वेबसाइट मैंने क्यों बनाई है, बिजनेस करने के लिए। बिजनेस लाना है तो मुझे मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है तो कहाँ पर करनी है, गूगल पर करनी है। क्योंकि गूगल पर यूजर को पता होता है वो उसको क्या चाहिए, वो ढूंढता हुआ आता है। और जब आप कुछ ढूंढ रहे होते हो और आपको वो चीज मिल जाती है तो ऑब्वियसली वहां पर आपके एक्शन लेने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो यूजर यहाँ पर ढूंढ के आएगा, उसको मेरा एड टॉप पोजीशन पे दिखेगा, कम टाइम में दिखेगा, उसको ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, इमीडिएटली एड पर क्लिक करके वो एक्शन ले लेगा। और अगर उसको ऐड पे भी क्लिक नहीं करना, लेट्स सपोज का और भी कम टाइम है, तो यहाँ पर कॉलर्स का भी ऑप्शन होता है। यूजर फोन से है, क्लिक करेगा और डायरेक्टली कॉल करके बात कर लेगा। सी कितना कम टाइम हो रहा है और यूजर के लिए कितना ईजी है और बिजनेस कितना जल्दी बढ़ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट बनाने के बाद इस टाइप के एड्स कैसे चलाए जाते हैं। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं गूगल एड्स। गाइस किसी टाइप की कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप देखना बहुत सिंपली आप इस टाइप के एड्स को बना सकते हो। ये गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम गूगल एड्स बोलते हैं। तो लेट मी जस्ट कम टू माय अनदर अकाउंट। ठीक है, मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं एंड दिस इज वन ऑफ माय कोर एक्सपर्टाइज, तो आई कैन जस्ट शो यू। लेट्स कम टू एनी ऑफ द अकाउंट। मैं आपको पहले एक अकाउंट दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ गूगल एड्स की पावर का। ठीक है, ही इज वन ऑफ द क्लाइंट। और इसने बेसिकली क्या करा है कि ये कॉलेज में ना एडमिशन्स करवाते हैं। अब कॉलेज में एडमिशन जैसे कंसल्टेंट्स होते हैं तो ये कॉलेज में एडमिशन्स करवाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने देखो एड स्टार्ट करवाया था। ठीक है, तो आप हार्डली देखो इन्होंने कितना स्पेंड करा है, अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज स्पेंड करे हैं अभी तक इन्होंने, ठीक, गूगल पर। टोटल अगर आप देखोगे इनके पास टोटल 107 लीड्स आई हैं, ऐसे लोग जो एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में। ठीक है, साउथ का एक कॉलेज है, वहाँ उनके एडमिशन के लिए इन्होंने कैंपेन रन करी थी। एक लीड की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 230 रुपीज पड़ी थी। 107 इनको लीड्स आई हैं और 255 इनके पास फोन कॉल्स आए हैं। तो अगर आप रफली इनका देखोगे, अप्रोक्सीमेटली 30,000 इन्होंने स्पेंड कराए और उसमें इनके पास 107 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करा है। ठीक है, कि हाँ उनको एडमिशन के बारे में जानकारी चाहिए। और 255 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली फोन कॉल किया है कि हाँ हमें इसके बारे में जानना है। एंड आप मानोगे, इसका जो इन्होंने 1-2 मंथ्स में जो रेवेन्यू जनरेट करा है सिर्फ 30,000 स्पेंड करके, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख टू 20 लाख रेवेन्यू जनरेट करा है बाय जस्ट इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट ओनली। सो दिस इज द पावर ऑफ द गूगल एड्स, जो मैं आपको पावर समझाना चाह रहा हूँ कि पावर क्या है डिजिटल मार्केटिंग की और गूगल एड्स की। अब मार्केट रेट अगर मैं आपको बताता हूँ कि जो एड्स चलाते हैं, जिनको इसकी एक्सपर्टाइज है, जो एड्स चलाते हैं वो कितना लेते हैं, वो लेते हैं 10%। ठीक है, जो भी आप रेवेन्यू स्पेंड कर रहे हो या फिर अगर बिजनेस के ऊपर बात हो रही है कि इतने का बिजनेस आएगा उसका 10% भी चाहिए। तो इसका 10%, 15% का 10%, 1.5 लाख टू 2 लाख आपका जो आपने ऐड चलाया। तो 2 महीने में घर बैठे बैठे आपने हार्डली 1 से 2 घंटे दिए और आपने इतना रेवेन्यू बना दिया। और ये तो सिर्फ एक क्लाइंट है एंड आई हैव मल्टीपल क्लाइंट्स। ठीक है, तो इसलिए जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द करेक्ट थिंग्स ओनली, द प्रैक्टिकल थिंग्स ओनली, कि किस टाइप से काम होता है। ठीक है, अब मैं आपको वो उस टाइप का ऐड बनाना दिखाता हूँ कि जो अभी हमने गूगल पर देखा है। तो लेट्स कम टू अनदर अकाउंट। ठीक है, ये सारे रनिंग अकाउंट्स हैं, इफ यू कैन सी ऑल दीज आर द रनिंग अकाउंट्स। बिल्कुल आयुष, वो सब बताऊंगा। लेट्स कम टू हैव अ न्यू कैंपेन। आई हैव टू क्रिएट अ न्यू कैंपेन। और न्यू कैंपेन मुझे कैसे बनानी है, मुझे बनानी है एक सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन कौन सी, जो हमने गूगल पर सर्च करा और वहां पर अपने पास लीड आए वहां से। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है लीड्स का।
और लीड्स ऑब्जेक्टिव के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर बनानी है अपनी सर्च कैंपेन। सिंपल, कंटिन्यू किया। इट विल आस्क माई द कैंपेन नेम, तो लेट सपोज मैं इसको देता हूँ टेस्ट, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू कैंपेन। ठीक है, मुझे कन्वर्जन चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो आई वांट टू बिड ऑन द कन्वर्जन ओनली। लेट्स क्लिक ऑन द नेक्स्ट। सर्च नेटवर्क पे ऐड चलाना है, डिस्प्ले नेटवर्क पे ऐड चलाना है, तो आई कैन जस्ट चूज दिस नेटवर्क्स, अदरवाइज आई कैन लीव इट। अब देखो यहाँ पर लोकेशन आती है कि मुझे कहाँ कहाँ पर किन किन लोगों को टारगेट करना है, किन किन लोगों को मुझे ऐड दिखाना है। मैं पूरे इंडिया में चलाना चाहता हूँ या फिर किसी स्पेसिफिक लोकेशन में चलाना चाहता हूँ। लेट सपोज आई वांट टू रन एडवर्टाइजमेंट द मेट्रोपॉलिटन एरियाज ओनली। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई एंड लेट सपोज चंडीगढ़। ऑलराइट, सो दीज आर माय सिलेक्टेड लोकेशन, जिन लोकेशंस पे मुझे ऐड चलाना है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि मुझे ऐड किन किन लोगों को दिखाना है। जो लोग प्रेजेंट हैं इस लोकेशन पे और जिनका इंटरेस्ट है, या फिर सिर्फ जो लोग प्रेजेंट हैं। तो पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में फर्क क्या है कि अगर मैं इस वाले ऑप्शन को चूज कर लूंगा जिनका इंटरेस्ट है, तो अगर कोई इंसान यूएस में बैठ के भी इन लोकेशन के बारे में सर्च करता है तो उसको वहां पर मेरा ऐड दिख जाएगा। ठीक है, अगर कोई यूजर कोई दूसरे एरिया से, लेट्स सपोज उत्तर प्रदेश से सर्च करता है इन एरियाज के बारे में, तो उसको भी ऐड दिखाएगा। बट मुझे उन लोगों को ऐड दिखाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाना है जो सिर्फ इन सिटीज में प्रेजेंट हैं और यहीं से वो सर्च कर रहे हैं। इसके बाहर के लोगों को मुझे ऐड नहीं दिखाना है, तो इसलिए मैंने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया। ऑलराइट, यस, आई कैन सेलेक्ट द मिर्जापुर आल्सो। देन यहाँ पर मुझे किस लैंग्वेज में अपना ऐड शो करना है वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे हिंदी में ऐड चलाना है, इंग्लिश में ऐड चलाना है, गुजराती में चलाना है, तेलुगु में चलाना है, जिस लैंग्वेज में मुझे ऐड चलाना है वो मैं यहाँ पर चूज कर सकता हूँ। ठीक, इसके बाद यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं करना, आप आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन पर। ठीक है, यहाँ पर ये एआई वाला फीचर आ गया यहाँ पर भी कि आपको गूगल को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है और गूगल आपके लिए ऐड बना देगा। बट अभी मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि हम मैनुअली कैसे करेंगे। मुझे यहाँ पर ना कुछ कीवर्ड्स देने हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझना, कुछ कीवर्ड्स देने हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने ना गूगल पर जाकर सर्च करा आईएसओ सर्टिफिकेशन। अब ये मेरे लिए एज ए जनरल यूजर मेरे लिए क्या है, ये एक सर्च है जो मैं गूगल पर जाकर टाइप कर रहा हूँ। बट एज अ डिजिटल मार्केटर मेरे लिए ये क्या है, ये कीवर्ड्स हैं कि यूजर गूगल पर आकर मेरे बिजनेस के बारे में क्या सर्च करेगा जिसको मुझे ऐड दिखाना है। ठीक, तो लेट सपोज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो व्हाट कीवर्ड्स आई यूज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। ठीक है, इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। मैं चाहता हूं कि कोई भी यूजर इन कीवर्ड्स को सर्च करे तो सर्च करते उसको इमीडिएटली मेरा ऐड दिखे। अब मेरा ऐड कौन सा होगा, वो ऐड मैं बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। कौन सी वेबसाइट, जो वेबसाइट मैं यहाँ पर बना रहा था। वेबसाइट का लिंक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डाला और राइट हैंड साइड पे आप देखना यहाँ पर आपको ऐड भी दिखेगा जो अभी हमने गूगल पर ऐड देखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स। ठीक, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स। ठीक, ये देखो ऊपर मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, हेडलाइंस आ गई है वाली जैसे मुझे ऐड में दिख रही थी अभी। अब ऐसे ही नीचे में आऊंगा तो थोड़े यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस भी हैं। एनरोल इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड लर्न द हाई इन डिमांड स्किल नाउ। यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू भी, ये देखो नीचे आपको प्रीव्यू भी शो होता रहेगा। तो इस टाइप से ये जो गूगल पर आपको ऐड शो हो रहे हैं, ये एड्स हम इस टाइप से बनाते हैं। ये हेडलाइंस आ गई, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन आया, ये सारे एड्स हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक, दैट इज द पार्ट। सेकंड थिंग मैंने क्या करा, पहले अपनी वेबसाइट बनाई, सेकंड पार्ट में उस वेबसाइट को प्रमोट कर रहा हूँ। अब लेट सपोज लोग गूगल तो यूज कर ही नहीं रहे, गूगल मतलब गूगल तो यूज कर रहे हैं बट उसके साथ साथ और भी प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म्स के साथ मुझे क्या करना है, मैं बेसिकली सोशल मीडिया पर भी जाऊंगा। अच्छा गाइस, अब एक और चीज समझना,
देखो, किसी भी नए ब्रांड के बारे में, ठीक है, कोई भी नया ब्रांड आएगा मार्केट में, उसके बारे में आप सबसे पहले कहाँ पर जानोगे? आप जानोगे सोशल मीडिया पर। ठीक है, या तो आप इंस्टाग्राम पर उसके बारे में आपको पता चलेगा, या ट्विटर पे पता चलेगा, या फिर फेसबुक पे पता चलेगा। ठीक, उसके बाद जब आपको पता चलेगा, देन व्हाट यू विल डू इज यू विल कम टू द गूगल। और गूगल पर जब आप सर्च करोगे, सर्च करने के साथ आपको मेरा ऐड शो होगा। तो इट मींस एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ बिजनेस ओनर, मुझे सोशल मीडिया पे भी अपनी प्रेजेंस बनानी है। क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज जो यूजर होते हैं वो डेली का 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। आपके साथ भी होता होगा, लेट मी नो, यस और नो। ऑन एन एवरेज डेली का 2 से 3 घंटा हमारा सोशल मीडिया पर निकल जाता है, रील्स पर, शॉर्ट्स पर, या नॉर्मली इंस्टाग्राम पर। आपके साथ भी होता है? यस। ठीक है, इनफैक्ट सिर्फ आज की जनरेशन नहीं, अब तो जैसे जो ओल्डेज जनरेशन है वो भी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। फेसबुक पर हो गए, इंस्टाग्राम पर हो गए, इंस्टाग्राम पर तो कम है, फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव है। तो अब अगर जो मेरी ऑडियंस डेली सोशल मीडिया पर 2 से 3 घंटे स्पेंड कर रही है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि वहां पर भी मैं अपना ऐड शो करूं, ताकि वो भी मेरे लिए, मेरे ब्रांड को लेके एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर भी अपनी वेबसाइट को प्रमोट करूंगा, अपने बिजनेस को प्रमोट करूंगा कि यूजर मेरे ऐड को देखें और मेरे बिजनेस से अवेयर हों। इसके लिए मैं आपको एक और केस स्टडी बताता हूँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, लेट सपोज कि एक और क्लाइंट है, क्या इनके स्टूडेंट ही हैं, उनका अपना ट्रैवल का बिजनेस है। ठीक है, ट्रैवल पैकेजेस देते हैं, दैट इज द प्रोज एडवेंचर्स। मनाली टाइप, हिमाचल टाइप, ये ट्रैकिंग पैकेजेस अपने सेल करते हैं। अब इनको पता है कि इनका अब सीजन आ रहा है, सितंबर से इनका सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो दे वांट टू रन द एडवर्टीजमेंट ऑन द सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग अपनी जो इमेजेस होती हैं, फोटोज होती हैं, वीडियोज होती हैं, वो मतलब फ्रिक्वेंटली शेयर करते हैं, और वहां से बाकी लोगों को भी पता चलता है। तो नाउ दे वांट टू रन एडवर्टीजमेंट ऑन द सोशल मीडिया। तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है हमारे पास? फेसबुक। अच्छा, फेसबुक मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा ऑडियंस फेसबुक के पास है। ठीक, हमें क्या करना है? फेसबुक पर आना है, और यहाँ पर इसका एक प्लेटफॉर्म होता है एड्स मैनेजर। जैसे अभी मैंने गूगल पर अपना ऐड बनाया ना, वैसे ही फेसबुक पर अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एड्स मैनेजर, जहां से हम एड्स चलाते हैं। एंड अगेन, यहाँ पर एड चलाना बहुत ईजी है। आप आराम से यहाँ पर बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के ऐड बना सकते हो। बस मेन थिंग आती है कि स्ट्रेटेजी आप कैसे यूज करोगे। तो वो चीजें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इनको लीड्स चाहिए। ठीक है, इनके जो पैकेजेस हैं, उन पैकेजेस में लोग आए, तो उसके लिए इनको लीड्स चाहिए। तो लीड्स के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है लीड्स का, मुझे इनके लिए लीड्स जनरेट करनी है। कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद मैं एक मैनुअल कैंपेन, ऑल्दो यहाँ पर भी एआई का ऑप्शन है, तो सब जगह एआई इंक्लूड हो चुका है, तो बेटर इज टू लर्न दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस कि एआई को आप कैसे यूज करोगे। ठीक, मैंने यहाँ पर नेम दिया कैंपेन का प्रोजा लीड्स। ठीक, देन यहाँ पर हमारा लीड्स, ये सब चीज ठीक है। इसको मुझे ऐड ऑन करना है, मुझे डेली का बजट कितना लगाना है। अब लेट सपोज क्लाइंट बोलता है कि नहीं, मैं तो जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे विश्वास नहीं है, तो मैं डेली का ना सिर्फ 200 रुपये लगाऊंगा। कहीं 200 रुपये से भी स्टार्ट कर सकता है। इनफैक्ट क्लाइंट का अगर बजट 100 रुपये है ना, 100 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐड आपका चल जाएगा, यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने करा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पर आने के बाद अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि आप जो लीड्स हैं, आप कहाँ पर चाहते हो यूजर आपकी वेबसाइट पर आए, वो लीड्स आनी चाहिए। जी सोनाली, आपको कंटेंट राइटिंग भी आनी चाहिए। देखो, एज अ डिजिटल मार्केटर, लेट सपोज कि आगे जाके आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर वर्क कर रहे हो, और आपके पास ऑल्दो सारी टीम होगी, बट बाय चांस अगर कोई टीम मेंबर अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस यू शुड आल्सो नो ऑल द थिंग्स कि कंटेंट नहीं है तो कंटेंट आपको कैसे लिखना है। अगर कभी कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, तो आपको ग्राफिक्स कैसे बनाने हैं, तो उसके लिए भी हम टूल यूज करेंगे ग्राफिक्स के लिए। अगर कोई ईमेल मार्केटर नहीं आया, तो आप ईमेल्स कैसे सेंड करोगे, कैसे आपको ईमेल लिखने है, उसके लिए कंटेंट कैसे जनरेट करना है, वो सब आपको आना चाहिए एज अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, वेबसाइट, अगर वेबसाइट डेवलपर नहीं है, तो आपको वेबसाइट बनानी भी आनी चाहिए। इनफैक्ट दैट इज बेसिकली द कॉल ऑफ द टाइम राइट नाउ। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि यूजर मेरी वेबसाइट पर आए, या फिर अगर किसी के पास वेबसाइट ही नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो डायरेक्टली एक इंस्टेंट फॉर्म में दूंगा, यहाँ पर फेसबुक पर ही उस फॉर्म को फिल करे और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करे। ठीक, आप देखो, नीचे आया मैं। नीचे आने के बाद एक पेज हमें सेलेक्ट करना है, किस पेज पर मुझे ऐड चलाना है। क्या मेरा गोल है? मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लीड चाहिए, कि जो यूजर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करे, आगे जाके वो कन्वर्ट भी हो। मैंने दूसरा वाला ऑप्शन चूज करा, क्योंकि मुझे क्लाइंट को रिजल्ट्स देने हैं उसके लिमिटेड बजट में। ठीक है,
अब नीचे जैसे जैसे हम आएंगे, यहाँ पर ना आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप किनको अपना ऐड दिखाना चाहते हो। तो मैं जरा एक बार ओरिजिनल ऑडियंस पे आ जाता हूँ और आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ कितना इजी है यहाँ पर ऐड सेटअप करना है। सबसे पहला एज। अब देखो एज है, मैं ट्रैवल पैकेजेस बोल भेज रहा हूँ जिनमें ट्रैकिंग पैकेजेस हैं, तो ऑब्वियसली जो ओल्ड एज पीपल हैं इट इज नॉट सुटेबल फॉर देम। तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो 18 से लेके अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स की एज ग्रुप के है। ठीक है, जो इस पैकेज को, इस एक्सपीडिशन को कंप्लीट कर पाए। जेंडर्स, अगर मैं स्पेसिफिकली मेल्स के लिए प्रमोट कर रहा हूँ तो मेल्स में चूज करूंगा, फीमेल्स के लिए कर रहा हूँ फीमेल्स चूज करूंगा। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मुझे इंटरेस्ट कैसे चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनका ट्रैकिंग में इंटरेस्ट हो। मैं यहाँ पे ट्रैकिंग टाइप करूंगा, तो यहाँ पर देख लो आप, बैक पैकिंग, वाइल्डरनेस, ट्रैकिंग पोल, रिवर ट्रैकिंग, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनका इसमें इंटरेस्ट है। तो मैं अपना ऐड सब लोगों को ना शो करके मैं सिर्फ उन लोगों को शो करूंगा जिन लोगों को बैक पैकिंग में या फिर ट्रैकिंग में या ट्रैवलिंग में या माउंटेन्स में इंटरेस्ट है, ताकि फेसबुक ऐसे लोगों को फिल्टर आउट कर दे जिन जो मेरे बिजनेस में, मेरे प्रोडक्ट में या सर्विस में इंटरेस्टेड ही ना हो। मैं सिंपल यहाँ पर चूज करूंगा ये। अब लेट सपोज आपके पास सिर्फ एक ही आइडिया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि और कौन कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं। नीचे यहाँ पर सजेशन का ऑप्शन है कि आप और किन किन लोगों को टारगेट कर सकते हो। फेसबुक आपको खुद बताएगा कि आप एडवेंचर ट्रैवल वालों को टारगेट कर सकते हो, जिनका कैंपिंग में, ट्रैवल में इंटरेस्ट है, जो फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स हैं जिनका कैंपिंग में है, आप इनको टारगेट कर लो। ठीक है, जिनका टेंट में, कैंपिंग में इंटरेस्ट है, आप इनको टारगेट कर लो। ठीक है, माउंटेनियरिंग में जिनका इंटरेस्ट है उनको टारगेट कर लो। ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल इंटरेस्ट आ जाएंगे, देखो रॉक क्लाइंबिंग होगी, इनका इंटरेस्ट है, मैं इनको टारगेट कर लूंगा। ठीक, तो ऐसे सोलो क्लाइंबिंग वाले आगे, इन लोगों को मैंने टारगेट करा। अब ये जो ऑडियंस है मेरी, ऐसी ऑडियंस है जिनका मेरे प्रोडक्ट में, मेरी सर्विस में एक अच्छा खासा इंटरेस्ट है। और फेसबुक को कैसे पता चला कि इनका इंटरेस्ट है, फेसबुक कैसे मेरे लिए ऑडियंस बना रहा है, तो फेसबुक के पास गाइस पूरा डेटा होता है। ठीक है, फेसबुक हैज द कंप्लीट डेटा कि जब आप फेसबुक पर लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम पर लॉगिन करते हो, अपनी प्रोफाइल से इमेजेस शेयर करते हो, इमेजेस के साथ आप अपनी लोकेशन डालते हो, तो फेसबुक के पास पूरा डेटा है कि आप कहाँ पर विजिट कर रहे हो, क्या आप एक्टिविटी कर रहे हो। उस डेटा के बेसिस पर फेसबुक ऑडियंस का सेग्रीगेशन करता है कि अच्छा इस यूजर का इंटरेस्ट ट्रेवल में है, इस यूजर का इंटरेस्ट शॉपिंग में है, इस यूजर का इंटरेस्ट कुकिंग में है, इस यूजर का इंटरेस्ट मॉडलिंग में है। तो फेसबुक हैज द कंप्लीट डेटा एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा फेसबुक गिव्स यू द ऑडियंस सेग्रीगेशन ऑप्शन, कि जिससे आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका एड एक सही टाइम पे सही ऑडियंस के सामने जाए, एक सही मैसेज के थ्रू, सो दैट यू कैन हैव द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट। क्लियर? तो इतना करना है, इतना करने के बाद फाइनली एडवर्टीजमेंटेशन पार्ट, जो आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ऐड देखते हो, यहां पर मुझे अपना ऐड बनाना है। ठीक है, जहां पर मैं, यहाँ पर आपको प्रीव्यू शो होगा, मुझे अपना जो वो सारा पार्ट आपके पास यहाँ से हो जाएगा। तो मुझे चाहिए एक इंस्टाग्राम का पोस्ट, ठीक है, मुझे ऐड के लिए चाहिए। यहाँ से मैं फ्री में एक वो बना लूंगा। ठीक है, कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना, बीइंग अ स्मार्ट डिजिटल मार्केटर। मैं चाहूंगा ट्रैकिंग। ठीक है, जिससे ट्रैकिंग की मेरे पास